تھیوریوں اور نظریوں کو لوگ اٹھا اٹھا کے ویسٹ باسکٹ میں پھینک رہے ہیں. جناب ہے کہ زمین جنبت نے جنبت گل محمد. اور کیا، اب آپ کی خاطر زمانہ تو رکنے سے رہا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اصل میں یہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر مراد اپنے اصولوں میں قدر سخت گیر ضرور ہیں، مگر اب یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے. 2 برس بعد وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. بہتر ہوتا اگر ڈاکٹر مشرف آپ نو آن مائی ڈیڈ باڈی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں اور اس کی ایڈمنسٹریشن، پالیسی اور نظام یہ سب میری ذمہ داری ہے. یہ سب میری ذمہ داری. آپ میرے کولیگز ہیں بجا، لیکن آپ لوگ وہی کریں گے جو میں چاہوں گا. دیٹ از پارٹ آف مائی جاب. ویسے بھی سر، اب اگر ہر آدمی اپنا اپنا میتھڈ آف ایجوکیشن استعمال کرنا شروع کر دے گا تو اٹ ول کریٹ اے میس. کھچڑی پک جائے گی. میں سمجھتا ہوں پروفیسر مراد کو اپولوجائز کرنا چاہیے. کیوں سر؟ نو آئی ہیو نو پرسنل گرج اگینسٹ ہم. ٹھیک ہے، وہ اگر ٹھیک طرح سے ایز انسٹرکٹڈ اپنا کام کرتے ہیں تو اوکے. بٹ اف ہی تھنکس کہ میں انہیں منانے جاؤں گا یا اسے روکنے کی کوشش کروں گا تو آئی ایم سوری. مجھے ان کی عمر کا لحاظ ہے، ادروائز ڈپارٹمنٹ کو ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے خیال میں آپ کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. پروفیسر مراد کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ڈپارٹمنٹ کو بلڈ کرنے، اسے آگے بڑھانے میں. 20 برس کام کیا انہوں نے یہاں. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ بہت ہو چکی ہے. ناؤ ہی مسٹ ٹیک ریسٹ. انہوں نے تو ٹیچنگ کو مذاق بنا رکھا ہے. شام کے 5 بجے تک اسٹوڈنٹس کو لیے بیٹھے رہتے، خواہ مخواہ دوسروں کے لیے مسئلے پیدا کرتے. بھائی میرے، جتنی تنخواہ ملتی ہے اتنا کام کرو. ڈاکٹر شافی، ہاں یہ جاوید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھائی ضرورت سے زیادہ فرض شناسی آئی ریئلی ڈونٹ لائک دس. سسٹم کو بہرحال قائم رہنا چاہیے. اگر قبول نہیں ہے تو بیٹر کوئٹ کر جاؤ. لیٹ ادرس ورک. ہاں بھائی آؤ آ جاؤ، بیٹھو جہاں جہاں جگہ ملتی ہے. ہاں تھینک یو سر. ہم لوگ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے. ہم سب سر دراصل مراد صاحب کے سلسلے میں آئے ہیں. بولو. سر ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا. یس یو مین ریزگنیشن. یس سر. بڑی غلط بات ہے جی. سر ہم انہیں نہیں جانے دیں گے. آپ انہیں روکیے نا سر. بڑی گڑبڑ ہو جائے گی سر. بھائی یہ سب باتیں تم مراد صاحب سے کیوں نہیں کہتے؟ سر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے اور اپنی کتابیں بھی پیک کر رہے ہیں سر. دیکھو بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں تمہاری کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا. مراد صاحب اپنی مرضی کے خود مالک ہیں. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مزید نہیں پڑھا سکتے ہیں تو اٹ از ہز ڈیسیژن. مگر سر آپ انہیں روک تو سکتے ہیں. انہی کے نام سے اس ڈپارٹمنٹ کی عزت ہے سر. وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں سر. ہاں بھائی دیکھو مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. اب اگر وہ نہیں رکتے تو میں کیا کروں؟ تم جا کے روک لو. آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا سر. بھئی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر مشرف ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. سر. بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر مراد صاحب بھی تو. سر آپ ہمارے ساتھ چلیے نا. جی سر. آپ تو ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں. بھائی دیکھیں آپ لوگ جائیے ہیں ان سے بات کیجیے. میں بہرحال اپنی سطح پر کوشش کرتا رہوں گا. سر وہ پلیز چلو. دروازہ کھولیے سر. دروازہ کھولیے پلیز سر. دروازہ کھولیں. آئی بیگ یو سر پلیز. سر ہماری بات تو سنیں. سر بس کرو یار مراد، اب تو کتابیں بھی تنگ آ گئی تم سے. ابھی لائبریری بند ہونے میں 2 گھنٹے باقی. اور جناب فلم شروع ہونے میں 15 منٹ باقی. اور 10 منٹ سے زیادہ کا راستہ بھی ہے. اور آج کے دن ہے بھی آخری دن. یار تم لوگ کچھ بھی کہو، مجھے نوٹس آج ہر حال میں مکمل کرنے ہیں. کیوں؟
कल ये लाइब्रेरी नीलाम हो रही है क्या? असल में इस किताब के साथ शर्त यह है कि इसे आज ही खत्म करना है, बाकी काम कल कर लेना यार। देखो इक़्तिदार, तुम दोनों एक दिन में फिल्म के 4-4 शो देखना अफोर्ड कर सकते हो, जबकि मैं यार तुम्हारे पैसे हम खर्च कर देंगे, पहले भी करते हैं। बात पैसों की नहीं है यार इमरान, मेरे पास वक्त बहुत कम है और इम्तिहान हाँ, इम्तिहान तो हमारा भी होना है यार, लेकिन हमने इसको तुम्हारी तरह जिंदगी का आजाद नहीं बना रखा। यकीन मानो जितना तुम पढ़ चुके हो ना, तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का है। कहते हो मैं तुम्हें लिख देता हूँ यार, बस कागज तुम। बात गोल्ड मेडल की नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल मसला मजमून पे दस्तरस हासिल करने का है। तुमने टाइम बी से मैच डालना यार, छोड़ो भी यार। देखो अगर खुद पढ़ूंगा नहीं तो तुम जैसे नालायकों को पढ़ाऊंगा क्या? अच्छा तो जनाब की सुई अभी तक टीचिंग पेट की हुई है? अभी तक से क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा नस्बुल ऐन है। खुदा का नाम लो यार, अगर तुमने फिल्म पे नहीं जाना तो ना जाओ, लेकिन अपना नस्बुल ऐन तो ठीक करो। सीधी तरह सिविल सर्विस में जाओ और ऐश करो। ये मुल्क हमने ऐश करने के लिए बनाया है। नहीं ऐश न सही, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम कि सिविल सर्विस में बुराई क्या है? कोई नहीं तो फिर यार, अपने अपने एटीट्यूड और ज़ौक़ की बात है। देखो ना, इस मुल्क, कौम और माशरे की खिदमत और इसकी तरक्की में शमूलियत हम कहीं रह के भी कर सकते हैं। अब तुम्हारी शख्सियत का फितरी झुकाव अगर सिविल सर्विस की तरफ है तो तुम जरूर उसमें जाओ, लेकिन अगर मुझे तदरीस पसंद है तो इसमें क्या हर्ज है? एक छोटा सा हर्ज तो ये है, इसमें कोई मुस्तकबिल नहीं। मुस्तकबिल से अगर तुम्हारी मुराद दौलत और वसाइल की फरावानी है तो वो तो शायद वाकई नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तालीम और तदरीस कोई बेवुकत या मामूली काम है। भाई मेरे, ये कौम की सप्लाई लाइन है। बहस में तो मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तुम ये बताओ कि उधर सेटलमेंट के दफ्तर में कोई सिफारिश है? क्यों, किसी मतरूका जायदाद पर कब्जा करना है? नहीं यार, वो मेरे अजीज हैं, बहुत कुछ छोड़ के आए, उनके लिए एक दुकान देख रहा था, सिफारिश है? भाई अगर उनका इस्तेहकाक बनता है, तुमसे कहो कि जाके सीधे मुताल्लिक़ अफसर से मिले, उनकी मदद करना उसका फर्ज है। क्यों इक़्तिदार? यार पता नहीं तुम किस दुनिया में रहती हो यार। तुम कागजात ले आना, मैं कल वालिद साहब को बताऊंगा। ठीक। हाँ भाई, तो अब तुमने क्या सोचा बखुदार? किस बारे में जी? यही भाई, अपने मुस्तकबिल के बारे में। यानी अब तुम माशाअल्लाह एमए हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट हो। जी, मैंने 2 जगह दरखास्तें दे रखी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाजमत मिल जाएगी। किस नौ की मुलाजमत है? मेरा मतलब है कि ओहदा क्या होगा? जी लेक्चरशिप है जी कॉलेज में। ये भी कोई मुलाजमत है भाई? फिर तुम माशाअल्लाह इतने ज़हीन पढ़े लिखे हो, कोई ढंग का काम करो। तालीम से ज्यादा ढंग का काम क्या होगा जनाब? ढंग का काम वो होता है बरखुरदार जिसमें इज्जत हो, मर्तबा मकाम हो, ताकत हो हाथ में। उस्ताद से ज्यादा मर्तबा मकाम किसका होगा जनाब, और इल्म से ज्यादा ताकत किस चीज में है? अरे भाई मियां बरखुरदार, अब अल्लाह के फजल व करम से ये मुल्क आजाद है। अंग्रेज जा चुका है, अपनी हुकूमत, अपना राज है। बड़े से बड़ा ओहदा तुम जैसे ज़हीन नौजवानों के लिए मौजूद है। कलेक्टर बनो, कमिश्नर बनो, जज बनो, ये लड़कों को पढ़ाने से क्या हासिल हो जाएगा? इत्मीनान और सुकून कल्ब जनाब, इससे बढ़कर नेमत क्या हो सकती है? ये सब हिमाकत की बातें हैं, बचपना है तुम्हारा। ये जो आइडियलिज्म वगैरह होता है ना, ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। किसी अच्छी सी नौकरी में जाओ, इसमें सबका फायदा है। अफसर बनो, अफसर। अफसर बड़ा गलत लफ्ज है जनाब, ये हमारे दौरे गुलामी की यादगार है। अब अगर हमें अपने लिए एक नया मुआशरा बनाना है तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा, बराबरी की सतह पे, अपने अपने महाज पे। करमदीन, हुक्के का पानी बदलो। आप समझते क्यों नहीं हैं? अब्बू को नहीं पसंद आपका ये पढ़ाना वगैरह। देखिए रहना, वो ये समझते हैं कि शायद अब पाकिस्तान में भी वही अंग्रेजी हुकूमत वाला तौर तरीका होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ सबकी इज्जत होगी।
देखिए ना, हमें सरकारी मुलाजिमों की भी जरूरत है, और उस्तादों और तालिब इल्मों की भी। मजदूर और काश्तकार भी हमें चाहिए, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी, और हुनरमंद और दस्तकार भी। लेकिन इन सब फूलों से मिलकर ही ये गुलदस्ता बनता है ना। मुझे कुछ पता नहीं है, आप मेरी बात मान लेना। देखिए रेहाना, हर शख्स का एक मतमा नजर होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलकर वो खुशी महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी का सही हक अदा कर रहा है। आप मेरे लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते? बात कुर्बानी की नहीं है रेहाना, अपनी सलाहियतों के मुनासिब इस्तेमाल की है। अब देखिए ना, मैं समझता हूँ कि तालीम का शोबा मेरी उस्ताद के ऐन मुताबिक है, और मैं आप तकरीरें करते रह जाएंगे और इधर बाजी पलट जाएगी। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके दोस्त इक़्तिदार साहब का रिश्ता हमारे यहाँ आया है, और अगर आपने फौरन कुछ किया नहीं, तो अपना फैसला नहीं बदला, तो शायद ये आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो। तो क्या आप ये नहीं? मुझे मेरे वालिदैन की इज्जत मुकद्दम है मुराद साहब। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? रेहाना, आप तो कहा करती थी कि गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अगर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना पकड़ लिया ना तुम्हें। कैसे हो तुम? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैं अपनी भाभी से मिलूं? अरे मिलना क्या, तुम तो इनको मुझसे पहले से नहीं जानती है, तो तुम्हारी क्या सेकंड कजन लगती है? कैसी हैं आप? शादी मुबारक हो। बिल्कुल नहीं रेहाना, ना इसके सलाम का जवाब देना और ना इसकी मुबारक कबूल करनी है। तुम क्यों नहीं हमारी शादी पे आए? वो दरअसल वो हुआ ये कि ऐन उस दिन जिस दिन की हमारी शादी थी, इन्हें एक ऐसी किताब मिल गई जिसमें एक अजीम तहजीब के अरूज ज़वाल की दास्तान दर्ज थी। तो इन्होंने सोचा भी कि दोस्त की शादी तो दोबारा हो सकती है, लेकिन ये किताब फिर हाथ नहीं आएगी। हैं, कोई ऐसी ही बात हुई होगी। नहीं, वो दरअसल मैं इक़्तिदार प्लीज जल्दी कीजिए, देर हो रही है। ओहो, देर हो रही। अच्छा भाई, लेकिन मैं इस तरह टाइम की वजह से ये तो पूछ लूं, तुम होते कहाँ हो? हैं? मैं इस वक्त तुम्हें देर हो रही है, ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें अपना एड्रेस दिए देता हूँ, तो फिर वहाँ किस दिन बैठ के तफसील से बात करेंगे। ये क्या अभी तक लेक्चर आ रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, एक साल में आदमी प्रिंसिपल हो जाता? भाई हम तो 6 महीने के अंदर ऐसी हो गए। हाँ, और इसमें कोई टेलीफोन नंबर वगैरह नहीं? नहीं, टेलीफोन कॉलेज में है तो सही, लेकिन दफ्तर जो है वो क्लासरूम से बहुत दूर है। क्लर्क बादशाह बोल तो बुलाते नहीं, और अगर कभी बुला भी लें तो वहां पहुंचते पहुंचते या फोन कट जाता है या बोर होकर दूसरे से लोग रख देते हैं। इसी बाइस तो कत्ले आशिकां से मना करते थे। हैं? इक़्तिदार लेट्स गो, बहुत देर। उफ, जालिम समाज। अच्छा भाई हम चलते हैं, लेकिन तुम आओ ना कभी, हमें विजिट करो भाई। हमारा बावर्ची बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, तुम्हारी फेवरेट डिश है। हमें तुम एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। हैं? आओ भी रहना। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। कमरे का मुझे पता है, तुम गालिबन नए आए हो जी। इसीलिए ऐसा करो मास्टर के मेरे लिए एक गिलास सादे पानी का ले आओ। हाँ, एहतियातन उसमें थोड़ी सी चीनी, नींबू और बर्फ मिला देना। देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जग काफी। हाँ, क्या हो रहा है प्रोफेसर साहब? मुझे यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे एक हफ्तेवार लेक्चर मिल गया, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। उफ मेरे खुदा, यार तुम्हें उलझन नहीं होती इतनी किताबों से? किताब इंसान की सबसे उम्दा रफीक होती है, इससे उलझन कैसे? तुम सुनाओ, ये शक्ल बड़े दिनों के बाद दिखाई तुमने। क्या पूछ दे यार,
वही एक चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तुम ये बताओ कि कोई सिफारिश है? कैसी सिफारिश? वो तुम्हारी भाभी सिविल अस्पताल में एडमिट है और खैरियत? क्या हुआ? जिस वक्त मैं घर से चला था उस वक्त तक तो कुछ नहीं हुआ था। अलबत्ता शाम को तवक्को है कि अच्छा, मुबारक हो। वो तो खैर मुबारक, लेकिन मसला ये आन पड़ा कि उन्होंने उसे वार्ड में डाल दिया और कहती है कि कोई कमरा खाली नहीं। यार ये बड़ा मसला है। हमारे हॉस्पिटल्स वाकई बहुत ओवर क्राउडेड है। हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बात समझने की कोशिश करो, कमरे खाली हैं। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि कमरे खाली हैं लेकिन मिलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि वो वीआईपीज और डॉक्टर साहिबान के प्राइवेट मरीजों के लिए रिजर्व है। आई सी। लेकिन यार ये तो बहुत बुरी बात है। देखो ना अस्पताल पर हर मुझे शहरी- लेक्चर नहीं, सिफारिश चाहिए। कोई ऐसा टेलीफोन जो खड़के और तुम्हारी भाभी के लिए कमरे का दरवाजा खुल जाए खटाक। हाँ। किससे बात करें? मैंने इक़्तिदार को फोन किया था, वो तो दौरे पे गया हुआ है। बाय द वे उसकी बीवी भी सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि तुम भी अब कुछ कर ही लो, बहुत हो चुकी। बेवक्त की शादी बहुत तंग करती है। यार इमरान, मेरी शादी मैं तो अब तारीखी नावलों के हीरोज की तरह ये मत कहना कि मेरी शादी तलवार से हो चुकी है। मेरा मतलब है किताब से हो चुकी है। चक्कर तो कुछ ऐसा ही है। हैं ऐसा? शुक्रिया। वो सर जी, वो कुलसूम बीबी और उनके अब्बा जी आए हैं जी, आपका पूछ रहे हैं। कुलसूम बीबी जी। अच्छा, उन्हें बिठाओ और कोई चाय वगैरह पूछो। वो जी चाय का तो पूछा था जी, कहने लगे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे मिलना है जी। मैं आता हूँ जी। अच्छा, ये कुलसूम बीबी का क्या हदूद अरबा है? मल्लेदार है, महाजर फैमिली, बड़े अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं या तुम्हें अच्छे लगते हैं? यार इमरान, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया करो खुदा के लिए। वो लोग लुट पिट कर आए हैं, गैरतमंद और खुददार लोग हैं। थोड़ी खाते हैं लेकिन कमा के खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मैंने तो ऐसे बात की थी, तुम तो लेक्चर ही शुरू कर देते। अच्छा है। बात एक बार शुरू हो जाए किबला तो फिर आसानी से खत्म नहीं होती। सच को मनवाने के लिए लड़ना पड़ता है। बुत गिरते नहीं, गिराए जाते हैं। वो तो ठीक है अजीज अमन, मगर आपसे मेरे हालात पोशीदा नहीं है। बेटा कम उम्र है, मैं माजूर हूं, रोजगार की कोई मुस्तकिल सूरत नहीं है, उस पर जवान बच्ची का साथ है। मैं ऐसे बदमाश किस्म के लोगों से झगड़ा मोल लेकर नहीं बेटा, ये काम मेरे बस का नहीं है। वो अब्बा मियाँ को धमकी दे गए हैं कि ना हमारे पैसे देंगे और ना ही लफाफे बिकने देंगे। ये तो बहुत ज्यादती है। खैर, आप तशरीफ ले चलिए, मैं करता हूं कुछ बंदोबस्त। मौला करीम तुम्हें इसकी जजा दे बेटा। आप उन लोगों के मुंह ना लगिएगा, कहीं खुदा ना खास्ता हो। नहीं, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। वो बेशक हमारे पैसे न दें, मगर हमारा पीछा छोड़ दें, हमें चैन से रहने दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। चलो बेटे, खुदा हाफिज। खुदा। देखो बहू, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। तुम्हारे वालिद मरहूम से हमारी बहुत दीद लिहाज थी। बेहतर है तुम इस बात में ना हो। आप प्रोफेसर टाइप आदमी है, आपको नहीं पता इस मोहल्ले में क्या हो रहा है? और जी ये लिफाफे वगैरह बनाने का चक्कर तो सिर्फ पर्दा है, ओला कर रखा है उन्होंने। कुछ खुदा का खौफ करें रियाज साहब, आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, ऐसे किसी भी तोहमत नहीं लगाते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक अर्ज गुजार कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। इसीलिए हमने मुद्दे पहलवान को समझाया था कि ये उस लड़की से शादी कर ले। पहलवान मान भी गया था, मगर वो बाबा तो पता नहीं। मगर पहलवान की तो पहले ही 2 बीवियां हैं और फिर इसकी उम्र भी। बीवियों की तो खैर 4 की इजाजत है, बाकी रह गई उम्र की बात। तो मर्द और घोड़े की उम्र नहीं, काठी मजबूत होनी चाहिए। उस लड़की के साथ पहलवान की शादी, मेरा मतलब है कि... ओए, तुम इतनी सैड किस चक्कर में ले रहे हो? क्या चक्कर है तुम्हारा उस लड़की के साथ? देखें, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी
चाहिए इस तरह की बातें। हमारे मोहल्ले में कोई गलत हरकत होगी तो उसका नोटिस हमें लेना पड़ेगा, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल भाई। देखिए पहलवान साहब, आप इस तरह की बातें करके मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप सीधी तरह से उनके पैसे वापस कर दीजिए, आने के लिए उन्हें तंग करना छोड़ दीजिए, वरना मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट कर दूंगा। ये भी असरत निकाल के देख लो। देखें जी, साफ बात है, अगर उन्होंने इस मोहल्ले में रहना है तो ठीक तरीके से रहना होगा। और वो ठीक तरीका ये है कि उस मासूम और बेगुनाह लड़की की शादी इस 2 बीवी वाले बुड्ढे के साथ कर दी जाए। मुंह संभाल के बात कर रहे। आपको अगर इतनी हमदर्दी है उनसे तो आप कर लें शादी, आप भी तो जवान हैं। तकरीर करनी बहुत आसान है प्रोफेसर साहब, हकीकत को समझने की कोशिश करो। उस बड़े मियां की हालत ऐसी नहीं कि वो आइंदा 10 साल में भी उस लड़की की शादी ठीक ठाक जगह कर सके। और लड़की जवान है, शादी नहीं होगी तो क्या होगा? पूरे मोहल्ले पे असर पड़ता है ऐसी बातों का। और उन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मुद्दे पहलवान का। वो किस चीज की कमी है मुद्दे पहलवान के घर में?